Hello everyone. So today here we are discussing about human eye, okay, which is a discussion from the chapter neural control and coordination. In the last video I discussed about the ear. In this video we are going to discuss about the human eye. Okay. So I have made the diagram beforehand just to save time. Okay. Now the discussion of eye, it is very broad. You need to make proper notes of each and every part, all the points which are required to be remembered for the exam and other purposes. So there are a lot of points that you need to remember. Hence when I teach it in a classroom program, I start from the notes and then I go into the mechanism. Okay, here I am coming directly into the mechanism portion. Whatever information is required, I will be telling them one after another in a very synchronized manner. You can note them down if you feel like. Okay, but first here we need to understand about the different parts of the eye. Once you are well acquainted, once you understand that what part is contributing in which function of the eye, for that reason each part has to be discussed thoroughly. Each part and each entity of those parts have to be discussed, because each of those entity of each part of the eye might have a individual significance. Okay, so that is what we need to see it over here. Okay, first I will explain you the different parts of the eye, different portion of the eye. Okay, and then we will discuss about the mechanism. Okay, here as you can see in this video I have made a lot of leveling, and a lot of leveling is also left. Okay, so first we will start with the layers of the eye, or even before the layers of the eye we can also start with some informational point which are required at the start of the discussion of the eye. Like our eyes are fit into a socket, is not it? There is a socket in our skull where our eyes are located. Okay, this socket is called as orbit, O-R-B-I-D, orbit. Okay, when you are standing static and if you are looking into something, so when you are standing static and you are looking into something without moving your eye or without moving your head, the maximum portion that you can see is considered to be your visual field. Okay, it is considered to be your visual field. Okay, eye is protected by many different types of organs of our body. Like we have our eyelid to protect our eye. Okay, there are lacrimal gland present which continuously secrete tear kind of secretion in order to remove the dust or any other particle from the surface of our eye. Okay, there is a mucous membrane present. हम लोग बचपन में आँख को ऐसे उल्टा कर देते थे, तो हमारा जो ये आईलिड जब उल्टा होता है तो पिंक कलर का एक पोर्शन दिखाई देता है कि नहीं? दैट इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसका रोल है हमेशा हमारा जो आँख का ओपन सरफेस है उसको मॉइस्ट रखना. तो ये काम कौन करता है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन करता है जो कंटिन्यूअसली आँख का सरफेस को मॉइस्ट रखता है. क्या नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन का? कंजंक्टिवा, CONJUNCTIVA, कंजंक्टिवा. देन वी हैव आवर आई लैशेस. ओके, आईब्रोज आर आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर. कभी कभी एकदम बहुत ज्यादा लाइट आने से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे आँख छोटा कर लेते हैं कि नहीं? तो ये आईब्रोज क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, तो आईब्रोज नीचे की तरफ आने की वजह से आईब्रो क्या कलर का है? आईब्रो ब्लैक. ये क्या करेगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसा काम करेगा, ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, आँख के अंदर ज्यादा लाइट घुसने नहीं देगा, तो आँख के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा. नहीं तो ज्यादा लाइट की तरफ देखने से आँख में अचानक पेन होता है. ओके, सो these are few things that we need to discuss at the start of the eye. Okay, then if we go into the main portion, then eye has 3 layers and each of these layers have some own characteristics, own significance. अब ये लेयर क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं. See, यहाँ पे मैंने बोल्ड लेटर्स में थोड़ा सा लिखा है. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्क्लेरा, बीच का लेयर, मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज कोरोइड, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज रेटिना. सो दीज आर द 3 layers which collectively togetherly forms our eye. Okay, now this sclera, first we will go one by one. First we are going to start our discussion with the outermost layer. Here the outermost layer is sclera, and this sclera is made up of dense connective tissue. This sclera, which is forming this outer layer of the eye, okay, it is made up of dense connective tissue and it is white in color except for this front part. You can see the front part of the sclera, it is a dome shape. Okay, it is dome shape. So the point from where the sclera starts becoming dome shape, that particular point is called as what? It is called as limbus.
is called as limbus. I am talking about this point because from this point this dome shaped structure has started to appear. Okay, so this point is called as limbus, and this portion, the dome shaped portion, this will be another limbus. This is one limbus, this is another limbus. So दो limbus के बीच में जो ये dome shaped portion है, it is called as what? It is called as cornea, and cornea is what kind in, इसका nature क्या है? It is transparent in nature. So बाकी portion, ये limbus का ये वाला portion, इस limbus का ये वाला portion, it will be white in color. Okay, because it is made up of dense connective tissue. But from this point to this point, this particular portion we are going to see it as a transparent portion, and this dome shaped portion is called as cornea. Now why this portion is dome shaped, what it has to do with the mechanism of the eye, that we will understand later. But you know, you have studied it in even in class 9-10, is not it? एक chapter हम लोग को मिलता था, फिजिक्स में भी तुम लोग को मिलेगा in higher secondary, ऑप्टिक्स है, हाँ, जिसमें इस तरीके का लेंस के बारे में हम लोग पढ़ते थे. ये जो एक शेप है कॉर्निया का, इसका यहाँ पे काम क्या है? दिस कॉर्निया इज गोइंग टू मेक द लाइट रेस रिफ्लेक्ट इनसाइड. समझ में आएगा नहीं? ये लाइट रेस को क्या करेगा? इट विल कंसंट्रेट दोज लाइट रेस टू पास थ्रू दिस बीच का पोर्शन कॉल्ड एज प्यूपिल एंड मेक दोज लाइट रेस टू बेंड एंड रीच वेयर इनटू द लेंस. ये काम है किसका? ये काम है कॉर्निया का. Okay, so cornea here it is acting like a refracting structure. It is dome shaped and it is working here like a refracting structure. Whatever light rays will fall on this cornea, it is going to converge them and make them reach where? The lens. It will pass through this khali portion which is called as pupil. Okay, this khali portion is called as pupil, and pupil is the khali portion present between these two. This is called as iris. So iris second layer का हिस्सा है. First layer में यही सब चीज है that you need to remember. Okay, now let us go to the second layer. बाकी लेवलिंग के बारे में छोड़ दो, लेयर बाय लेयर लेवलिंग सब डिस्कस हो जाएगा. ठीक है, now the second layer. second layer यहाँ पे कौन है? Choroid. and choroid का काम क्या है? choroid जो है it is a highly pigmented layer and highly vascularized layer. माने highly vascularized माने it is well supplied with blood vessel and this choroid is highly pigmented. that means मेलानिन से भर भर के ये choroid बना है. ठीक है, अब अगर कोई भी स्ट्रक्चर मेलानिन से भर भर के बना होगा तो वो डीपली पिगमेंटेड होगा. सो दिस choroid is a deeply pigmented structure, deeply pigmented layer which is formed by the presence of melanin. ठीक है, due to which the color of this choroid is bluish. ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे ब्लू लाइन से इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया. मेलानिन के प्रेजेंस के वजह से द कलर ऑफ द choroid is bluish. Okay, and this choroid will come ahead. Okay, this layer choroid well vascularized, highly pigmented, याद रखने का है. highly pigmented क्यों है ये बाद में बताऊंगा. highly vascularized क्यों है ये भी बताऊंगा. ये choroid जो ऐसे आ रहा है, आके this choroid it expands to form some broader region. Okay, and this broader region which is formed on both the sides is called as ciliary body. So this is ciliary body, this is ciliary body. Okay, so choroid जो है वो अपना, हम लोग अगर आँख को ऐसे करके if we divide the eye into 3 parts, तो इस ये जो choroid layer है, इस choroid layer को अगर हम लोग 3 हिस्सा में डिवाइड करें, 1 2 ऐसे करके 2, अगर यहाँ पे मैं कट मारूं तो ये पोर्शन ये और ये सामने का एक पोर्शन हो जाएगा. If I divide choroid into 3 parts, okay, then the posterior 2 parts will be thin, but the anterior 1/3 it will be thick. Why thick? Because anterior 1/3 में ये जो choroid है वो देखो expand हो रहा है, और expand होके क्या बना रहा है? ciliary body. ciliary body आगे जाके क्या बना रहा है? iris. So iris pigmented portion है हमारा आँख का, जो ये जो black round है, this is basically the iris. If you look like this, ये तो lateral view. If you look like this, then ये वाला जगह में हम लोग क्या देखेंगे? ये जो black है, ब्लैक दिखाई देता है कि गोल, दिस इज द आइरिस. और आइरिस के बीच का जो एक होल है जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, ब्लैक के बीच में एक और ब्लैक, दैट इज योर प्यूपिल, जिसके थ्रू हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? लेंस दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो दिस choroid layer in the anterior 1/3 part it becomes thicker. posterior 2/3 part में देखो ज्यादा कुछ काम नहीं है, उसको थिक बनने का जरूरत नहीं, वो थीन है. लेकिन anterior 1/3 part में it gets thicker and it forms some structure such as iris, such as this structure.
एक्सीडेंट हो जाता है बीच बीच में। दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज सस्पेंसरी लिगामेंट और जोनुला ऑफ जीन। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, याद रखने में इजी होगा, ठीक है। तो ये है एक स्ट्रक्चर जो सिलियरी बॉडी से आगे की तरफ आएगा। इस स्ट्रक्चर का काम क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट जो निकला है उसका काम क्या है? आइरिस जो है, आइरिस का काम सबको समझ में आया होगा। पिगमेंटेड है तो क्या करेगा? लाइट रेस को ट्रैप कर लेगा, बहुत सारा हैवी बोम्बार्डमेंट होने नहीं देगा आँख के अंदर। दिस इज द रोल ऑफ आइरिस। तो इसलिए इस कॉर्निया को जो लाइट को देखना है उसको कन्वर्ज करके लेंस तक पहुंचाना होगा, और एक्सेसिव लाइट ये आइरिस क्या करेगा? अंदर जाने ही नहीं देगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऐसा काम करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके खत्म कर देगा। ओके, जोनुला ऑफ जीन or suspensory ligament which arises from the ciliary body, it holds a lens in between. This lens is ectodermal in origin, ectoderm ने बनाया होता है। This lens is biconvex in nature and इस लेंस का काम है जो लाइट कॉर्निया कन्वर्ज करके इसमें गिराएगा, लेंस का काम है उस लाइट को फोकस करना। कहाँ पे? ऑन द इनर पोर्शन ऑफ द आई। किसमें फोकस करेगा? तीसरे लेयर पे फोकस करेगा। कौन है तीसरा लेयर? रेटिना, असली लेयर, फंक्शनल लेयर, जिसके वजह से हम लोग को दिखता है, दैट इज रेटिना। ओके, एंड दैट इज द वर्क ऑफ द लेंस। व्हाटएवर लाइट विल कम इनटू द लेंस, लेंस नीड्स टू फोकस इट ऑन द थर्ड एंड द इनरमोस्ट लेयर कॉल्ड एज रेटिना। ओके, अब तीसरे लेयर पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा लेयर कौन है? नाम क्या है? रेटिना। एंड रेटिना इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स या दो लेयर में ये डिवाइडेड होता है। पहला लेयर पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये वाला देखो, पहला लेयर स्क्लेरा, कोरोइड। देखो ये दोनों, ये ब्लैक एंड ये रेड, ये दोनों मिल के फॉर्म करता है रेटिना। तो ब्लैक वाला है पिगमेंटेड एपिथेलियम, रेड वाला है न्यूरल पोर्शन। पिगमेंटेड एपिथेलियम में भी मेलानिन भर भर के है, सो इट इज ऑल्सो हाईली पिगमेंटेड। कोरोइड इज ऑल्सो हाईली पिगमेंटेड। एंड उसके आगे प्रेजेंट है रेटिना का सेकेंड लेयर कॉल्ड एज न्यूरल पोर्शन। सो दिस रेड पोर्शन इज अ न्यूरल पोर्शन। न्यूरल पोर्शन एंड पिगमेंटेड एपिथेलियम दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। न्यूरल पोर्शन विल बी मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड पिगमेंटेड एपिथेलियम विल बी हैविंग मेलानिन प्रेजेंट इन इट, एपिथेलियल सेल्स विद मेलानिन प्रेजेंट इन इट, जिसके वजह से ये पिगमेंटेड हो गया है, ठीक है। नाउ पिगमेंटेड एपिथेलियम विल रन टिल दिस पॉइंट, टिल द पॉइंट जहां से लेंस स्टार्ट होता है। तो लेंस का एरिया को छोड़ के उस एरिया तक पिगमेंटेड एपिथेलियम रन करेगा, लेकिन जो न्यूरल पोर्शन है वो सिर्फ इस पॉइंट तक रन करेगा। कौन सा पॉइंट? The point from where ciliary body originates. So the point from where the ciliary body originates, neural epithelium will run only till then. उसके आगे नहीं आएगा, लेकिन pigmented epithelium will come till the point of ciliary body. सिर्फ लेंस के एरिया को छोड़ के बाकी पोर्शन में pigmented epithelium present रहेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं? This point has got a special name. It is called as ora serrata. This point, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ? ये पॉइंट जिस पॉइंट के बियॉन्ड न्यूरल पोर्शन नहीं आता है। तो न्यूरल पोर्शन कम्स टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड एज ओरा सेरेटा। इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सिलियरी बॉडी स्टार्ट्स टू फॉर्म फ्रॉम द कोरोइड, ठीक है। तो आई होप लेयर सब समझ में आया है, ठीक है। अब लेयर्स के अंदर जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आंख में अभी हम लोगों ने जो 3 लेयर्स के बारे में एंड उनके डिफरेंट एंटाइटीज के बारे में डिस्कस किया, और भी डिस्कस करना है, लेकिन अभी तक जो डिस्कस किया उसके हिसाब से आंख जो है वो 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई है। एक लेंस से लेके रेटिना तक का जो एरिया है, ठीक है, वो एक चैम्बर बना है, और लेंस से लेके कॉर्निया तक का जो एक जगह है वो एक एरिया बना है। तो इस एरिया को हम लोग क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट विट्रस चैम्बर। एंड इस एरिया को हम लोग क्या बुलाते हैं? कॉर्निया से लेंस तक का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्वस चैम्बर, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर, ठीक है। नाउ विट्रस चैम्बर विल बी फिल्ड विद अ फ्लूइड, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड एज विट्रस फ्लूइड। एक्वस चैम्बर विल बी फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एज एक्वस फ्लूइड, और एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ओके, HUMOR, ठीक है। दैट इज द स्पेलिंग ऑफ द ह्यूमर। सो यहाँ पे भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा विट्रस चैम्बर में, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्रेजेंट होगा कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे भी इस चैम्बर में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा कॉल्ड एज एक्वस चैम्बर, ठीक है। एंड द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस चैम्बर एंड द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस चैम्बर, दिस फ्लूइड यहाँ पे आएगा कहाँ से? ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोरोइड जो है वो क्या है? हाईली वास्कुलराइज्ड, हाईली पिगमेंटेड। पिगमेंटेड का काम क्या है वो अभी तक नहीं बताया है, बताऊंगा। लेकिन
वास्कुलराइज्ड क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसके अंदर का फ्लूइड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, इसके अंदर का फ्लूइड फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन वो करने में कोरॉइड का वास्कुलरिटी का हाथ है। कोरॉइड हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स है और उसी ब्लड वेसल्स का फ्लूइड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली निकल के आता है, कंटिन्यूअसली ड्रेन होता है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस के वजह से हमारा ये वाला पोर्शन डोम शेप बन के रहता है। विट्रस चैम्बर बिफोर बर्थ विट्रस चैम्बर हमारा आई जब फॉर्म हो रहा होगा तब कोरॉइड से ही वो फ्लूइड निकल के यहाँ आता है और आके होल लाइफ यहाँ पे वो फ्लूइड रहता है, विट्रस ह्यूमर जिसको बोलते हैं। एंड दिस फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द शेप, स्फेरिकल शेप ऑफ आवर आई। Okay, so the fluid which is present in vitreous humor will be formed before birth and this fluid is going to maintain the spherical shape of our eye or it will maintain the shape of our eyeball. And this chamber, aqueous chamber, इसमें aqueous humor होगा and that aqueous humor is continuously being produced and continuously being drained throughout our life. And that formation of aqueous humor or presence of aqueous humor in this place is going to give this curvature, this type of structure to the cornea. डोम शेप बनाने के पीछे एक्वस ह्यूमर का हाथ, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले पार्ट समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रेटिना है, ये रेटिना दो लेयर से बना हुआ है। पिगमेंटेड एपिथेलियम में तो नॉर्मल एपिथेलियल सेल विद मेलानिन इन इट, तो ठीक है। न्यूरल पोर्शन को अगर हम लोग जूम करें, ये जो न्यूरल पोर्शन है इसको अगर मैं जूम करूँ ना तो यहाँ पे मुझे सीरीज ऑफ सेल्स दिखाई देगा थ्रू आउट एनी न्यूरल पोर्शन। यहाँ से लेके जो पूरा न्यूरल पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये न्यूरल पोर्शन किसी भी जगह पे मैं जूम करूँ तो मुझे दिखाई देगा न्यूरल पोर्शन में कुछ और मतलब 4-5 सेल्स है जो मिल के न्यूरल पोर्शन को एक साथ बनाया है। सो ये लेयर देखने में एक सिंगल लग रहा है लेकिन जूम करूंगा तो यहाँ पे 4-5 सेल मुझे दिखाई देगा, ठीक है। प्लस ये 4-5 सेल क्या है ये जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में ये जो पोर्शन है उसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी सब बता दिया है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन में फोकस करूँ। अगर मैं ये जो न्यूरल पोर्शन है इसको अगर मैं ऐसे करके जूम करूँ, इस वाले हिस्सा को अगर मैं जूम करूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा सबसे ये वाला रीजन, अगर मैं पूरा ये वाला रीजन कंसीडर करूँ, सपोज ये वाला रीजन में कंसीडर कर रहा हूँ, ये दिस इज द चंक, दिस इज द पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मैं इस पोर्शन को लूँ लेके यहाँ पे अगर मैं जूम कर दूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा? सबसे बाहर वाला लेयर मुझे क्या दिखाई देगा? स्क्लेरा। उसके अंदर वाला लेयर मुझे क्या दिखाई देगा? उसके अंदर वाला लेयर मुझे ब्लू कलर का दिखाई देगा एंड दिस विल बी व्हाट? CH माने कोरॉइड। उसके अंदर वाला लेयर मुझे क्या दिखाई देगा? एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम, PE जो रेटिना का ही हिस्सा है बट पहला लेयर। उसके बाद PE के बाद मुझे क्या दिखाई देगा? न्यूरल एपिथेलियम। एंड मैंने जूम किया है देखने के लिए न्यूरल एपिथेलियम में क्या है। अब अगर मैं देखने जाऊं तो मुझे पिगमेंटेड एपिथेलियम के आगे न्यूरल एपिथेलियम शुरू होते हुए दिखाई देगा। एंड न्यूरल एपिथेलियम क्या सेल से बना हुआ है? देखो ये वाला रीजन पूरा का पूरा NEPI न्यूरल एपिथेलियम या न्यूरल पोर्शन, ठीक है। ये वाला रीजन PE के आगे, पिगमेंटेड एपिथेलियम के आगे। अब न्यूरल एपिथेलियम में क्या क्या है? न्यूरल एपिथेलियम में पिगमेंटेड एपिथेलियम के ठीक आगे मुझे मिलेगा रोड्स एंड कोन्स। अब रोड्स एंड कोन्स ये जो सेल है ये कैसा सेल है? दीज आर फोटो रिसेप्टर सेल, दैट मीन्स दिस सेल्स कैन रिसीव लाइट। रोड्स एंड कोन्स के आगे मुझे मिलेगा बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन के पीछे मुझे मिलेगा एक और न्यूरॉन जिसका नाम है मुल्लर सेल, और मुल्लर सेल्स के आगे मुझे मिलेगा एक और सेल विच इज कॉल्ड एज रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक लाइन से हम लोग को न्यूरल एपिथेलियम दिखाई दे रहा है, इस एक लाइन को मैं जूम करूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा? ऐसे सीरीज ऑफ सेल्स मुझे दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे मुझे ऐसे सीरीज ऑफ सेल्स दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल होता है, जो लास्ट सेल होता है टुवर्ड्स लाइक दिस, ऐसे है ना ये वाला, तो टुवर्ड्स द विट्रस चैम्बर जो लास्ट सेल है दैट इज रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को यहाँ पे मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे आई होप तुम लोगों ने समझा है। अगर मैं इस चीज को जूम करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा? RNC रोड्स एंड कोन्स। उसके आगे मुझे क्या दिखाई देगा? बाइपोलर न्यूरॉन BN। उसके आगे क्या दिखाई देगा? MC मुलर सेल्स। उसके आगे RGC रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल। और ये जो रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल है
उसका जो नार्व एंडिंग होता है, उसका जो एक्सोन होता है या नार्व एंडिंग होता है, अब डोंट टेल मी एक्सोन क्या है, एक्सोन या नार्व एंडिंग जो होता है वो सारा एक्सोन या नार्व एंडिंग ऐसे करके या इस होल के थ्रू बाहर जाता है। तो ये तो मैंने एक पॉइंट का किया, ये जो इस पॉइंट का किया वैसा तो हम लोग को हर पॉइंट में मिलेगा। ये अरेंजमेंट हम लोग को थ्रू आउट दिस न्यूरल एपिथेलियम मिलेगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो आज यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ पे भी सेम कहानी है। पिगमेंटेड एपिथेलियम के पास है रोडेन कोन, उसके आगे है बीएन बाइपोलर न्यूरॉन, उसके आगे है एमसी मूलर सेल, उसके आगे है आरजीसी रेटिनल, और रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल का जो नार्व एंडिंग या एक्सोन है वो देखो ऐसे करके यहाँ से निकल रहा है। अब ये जो पॉइंट है जिसके थ्रू हमारे आँख से एक एक्सोन बंडल हर पॉइंट का रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल का जो नार्व एंडिंग है वो इधर से ही निकलेगा। ये तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट का दिखाया, ऐसा तो हर जगह से निकलेगा। तो एक बंडल जैसा नहीं बन जाएगा, वो बंडल हमारे आई से कैसे निकलेगा, वो निकलेगा थ्रू व्हाट, ब्लाइंड स्पॉट। एक स्पॉट है आँख के पोस्टेरियर मोस्ट पोर्शन में जिसका नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। और ये ब्लाइंड स्पॉट इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वो एरिया है जहाँ से हमारे आँख के अंदर का नार्व निकल के जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। एंड इस वाले स्पॉट में इस तरीके का तो अरेंजमेंट नहीं है, तो अगर लेंस ने कभी भी गलती से अगर लाइट को कहाँ फोकस किया, ब्लाइंड स्पॉट में फोकस किया, तो हम लोग को कुछ दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि दिखने के लिए ये अरेंजमेंट का होना जरूरी है। ये अरेंजमेंट तो इस जगह में एब्सेंट है। देखो यहाँ तक है अरेंजमेंट, यहाँ तक है अरेंजमेंट, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ से नार्व्स निकल रहा है। तो लेंस हमेशा कोशिश करेगा कि लाइट को वो कभी भी इधर ना भेजे, बिकॉज इधर अगर भेजेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, बिकॉज यहाँ पे ये अरेंजमेंट नहीं है। लेंस हमेशा कोशिश करेगा कि लाइट को यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ। अगर मैं इस डायग्राम को अभी ऐसे कर दूं तो ये ज़्यादा एप्ट होगा, एप्रोप्रिएट होगा, ऐसे और ऐसे। तो लाइट हमेशा कोशिश करेगा, लेंस हमेशा कोशिश करेगा कि लाइट को ये न्यूरल एपिथेलियम वाले रीजन में ही भेजा जाए, नॉट इन द ब्लाइंड स्पॉट। वहाँ गिरेगा तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। So I hope you understood what is blind spot. It is the spot through which the nerve endings of retinal ganglionic cell forming an axon bundle exits the eyeball and goes into the brain. यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके ये नर्व बंडल किसके तरफ जा रहा है, ये जा रहा है ब्रेन के तरफ, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल देगा तभी समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ दिखाई दे रहा है हम लोग को, कलर क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, बेस्ड ऑन द प्रीवियस मेमोरी। ओके, ब्लाइंड स्पॉट के ठीक पैरेलल, ठीक ऊपर, पैरेलल ऊपर, ठीक है, जो न्यूरल एपिथेलियम का पोर्शन है वहाँ पे हम लोग को एक स्पॉट मिलेगा जिसको हम लोग मैकुला ल्यूटिया और येलो स्पॉट बोलते हैं। दिस मैकुला ल्यूटिया और येलो स्पॉट इज दैट पोर्शन, ध्यान से सुनना, दिस मैकुला ल्यूटिया और येलो स्पॉट इज प्रेजेंट पैरेलली टू ब्लाइंड स्पॉट एंड दिस इज दैट स्पॉट इन द रेटिना व्हिच हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स एंड कोन्स। रोड्स एंड कोन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अरेंजमेंट हर जगह प्रेजेंट है इन द न्यूरल एपिथेलियम, लेकिन ये रोड्स एंड कोन्स का नंबर सबसे डेंस, सबसे हाईएस्ट प्रेजेंट है इस वाले स्पॉट में विच इज कॉल्ड एज येलो स्पॉट। और बिकॉज यहाँ पे रोड्स एंड कोन्स एकदम डेंसली प्रेजेंट है इसलिए इसका कलर येलोइश हो जाता है, इसलिए इसको येलो स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो लेंस होता है उसका हमेशा कोशिश होता है टू फोकस द लाइट ऑन दिस येलो स्पॉट, क्योंकि येलो स्पॉट में रोड्स एंड कोन्स मैक्सिमम है। तो लाइट रिसेप्शन, ये क्या है, रोड्स एंड कोन्स, फोटो रिसेप्टर सेल। तो ये रोड्स एंड कोन्स लाइट रिसेप्शन क्या करेगा, सबसे हाईएस्ट करेगा जहाँ पे वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। रोड्स एंड कोन्स का काम है लाइट को कैच करना, तो रोड्स एंड कोन्स जिस भी पोर्शन में ज्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ पे लाइट का कैचिंग ज्यादा होगा, तो जो इमेज बनेगा उसका क्लियरिटी, उसका कलर बहुत निखर के आएगा, खिल के आएगा। इसलिए हमारा लेंस का हमेशा कोशिश रहता है कि व्हेनेवर लाइट को कॉर्निया मेरे में भेजे, मैं हमेशा उस लाइट को क्या करूं, येलो स्पॉट में पास करूं। क्यों? क्योंकि येलो स्पॉट में रोड्स एंड कोन सबसे ज्यादा है, मेरा सबसे ज्यादा रिसेप्शन, मेरा माने मैं यहाँ पे लाइट को बोल रहा हूँ, लाइट जब यहाँ जाएगा तो लाइट बोलेगा कि मुझे यहाँ जाना है, लेंस तुम प्लीज मुझे यहाँ भेजो, क्योंकि मैं जब यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा खातिरदारी, मेरा जो रिसेप्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। काहे? क्योंकि वहाँ पे मेरा रिसेप्शन करने वाला भर भर के प्रेजेंट है, that is rods and cones are densely present here. So a person will get image, a vision of the highest acuity, of highest resolution. ठीक है? So I hope you understood each and every part of the eye which is written in the board. You understood the arrangement, I guess. ठीक है कि अरेंजमेंट ऐसा टाइप का है, न्यूरल एपिथेलियम को जूम करेंगे तो ऐसा ऐसा सेल्स दिखाई देगा और सेल का नर्व एंडिंग ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू चला जाएगा। So ये है
लेबलिंग का डिस्कशन, अभी हम लोग मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे। लेबलिंग को समझना, लेबलिंग का ईच एंड एवरी पार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ओनली 75% ऑफ द लेबलिंग, देयर इज मोर डेप्थ इनटू इट, बट दिस इज द बेसिक एज पर द एनसीईआरटी दैट यू शुड नो, इवन मोर देन एनसीईआरटी इज डिस्कस्ड ओवर हियर। ओके, बट to have that knowledge or in totality you need that whole notes as well as you need much more detailing discussion. Okay, but this is okay for your need, it will be apt. Okay, तो आई होप लेवलिंग सब समझ में आए, नहीं आए तो रिवाइंड करके वापस देखो, लेवलिंग को समझो, बिकॉज लेवलिंग नहीं समझोगे तो आगे का मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। ओके, सो यू कैन मेक अ डायग्राम ऑफ दिस, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मैकेनिज्म नेक्स्ट, तब कुछ कुछ चीज़ें भी जा सकता है, तो इफ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन ड्रॉ इट। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म पोर्शन। ओके, ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। लेवलिंग, सबका फंक्शन, कौन क्या है, किसको क्या बोलते हैं, कौन कैसा है, सब बता दिए ना। जैसे कि मैंने बोला, इफ वी आर स्टैंडिंग स्टैटिक, ओके, एंड इफ यू आर लुकिंग, देन द मैक्सिमम एरिया दैट यू कैन सी इज योर विजुअल फील्ड। माने जो विजुअल फील्ड तुम्हारा है उसका लाइट तुम्हारे आँख के अंदर आके एंटर हो रहा है, और जो तुम्हारा विजुअल फील्ड नहीं, अगर मैं अपने हेड को ऐसे रखूँ, ये वाला पोर्शन तक मुझे मैक्सिमम दिखाई दे रहा है विदाउट मूविंग माई हैंड। इसके बियॉन्ड यहाँ पे मैं अभी अपने मतलब इस तरफ तो तुम लोग देखोगे नहीं, मतलब इफ आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइक दिस एंड मुझे अपना हाथ इस पॉइंट तक दिखाई दे रहा है, मूवमेंट थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है क्लियरली, लेकिन इस पॉइंट पे मैं अगर हाथ को लेके जाऊँ, यहाँ पे मेरा हाथ का क्या एक्टिविटी हो रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से भी लाइट मेरे आँख में आ जरूर रहा है, लेकिन वो लाइट को मेरा कॉर्निया फोकस करके लेंस तक नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक मुझे दिखाई देगा विथ मोटा मोटी रिजोल्यूशन, इस तरफ का चीजों का रिजोल्यूशन अभी कम होगा, इफ आई कीप माई आई स्ट्रेट, ठीक है, तो मोटा मोटी रिजोल्यूशन में जितना दिखाई देगा दैट इज योर विजुअल फील्ड। उस एरिया, उस विजुअल फील्ड का रोशनी, रेस, लाइट रेस इज कमिंग एंड इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विथ योर कॉर्निया, ऐसे आएगा, एंड विल कम इन कांटेक्ट विथ योर कॉर्निया। Cornea will try to converge those light rays and make them fall where into the lens. Okay, तो अभी थोड़ा ये सब थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि ये सब तुम लोग को लेवलिंग में ऑलरेडी बोला है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एरो फेरो ड्रॉ करना होगा तो इसको मिटा रहा हूँ। सपोज तुम्हारा विजुअल फील्ड का लाइट रेस, विजुअल फील्ड का लाइट रेस, ठीक है, ये सब एरो अभी विजुअल फील्ड का लाइट रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। विजुअल फील्ड का लाइट रेस जैसे ही आके तुम्हारे कॉर्निया में गिरेगा, दिस इज कॉर्निया, कॉर्निया उन लाइट रेस को क्या करेगा, कन्वर्ज करके कहाँ पहुंचाएगा, उन लाइट रेस को कन्वर्ज करके पहुंचाएगा टू द लेंस। अब देखो कुछ कुछ लाइट रेस, देखो ये सब जगह में जो आके गिरेगा उसको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, वो जगह आइरिस में टकरा जाएगा, तो वो तुम्हारे लेंस तक नहीं जा रहा है। सो ये वो जगह है जहाँ पे तुमको दिखाई नहीं देगा, इफ यू कीप योर आई स्टैटिक, एक पॉइंट के बियॉन्ड तुमको दिखाई नहीं देगा, ये वो जगह है, ठीक है, जिसका लाइट रेस वहां नहीं पहुंचा। अब लाइट रेस जब लेंस में पहुंचेगा, लेंस उन लाइट रेस को क्या करेगा, फोकस करेगा थ्रू दिस विट्रस चेंबर, कहाँ पे, जहां पे बात हुआ था वहां पे, मैकुला ल्यूटिया, वहां पे फोकस करेगा, नॉट हियर, बिकॉज यहाँ करने से दिखेगा नहीं, ब्लाइंड स्पॉट ऑलरेडी बोला है, यहाँ पे फोकस करेगा। अब यहाँ पे जब फोकस करेगा, अब देखो ध्यान से एवरीबॉडी, यहाँ से जब लाइट जा रहा है विट्रस चेंबर के थ्रू, जब लाइट जा रहा है, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है यहाँ पे, विट्रस ह्यूमर दैट फ्लूइड, उसके थ्रू जब लाइट जा रहा है तो लाइट सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ऐसे जब लाइट जाएगा तो रास्ते में वो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आ रहा है, रेटिनल गैंग्लियनिक सेल, बट इट इज अ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन तो लाइट रिसेप्शन नहीं कर सकता है, नर्व इंपल्स पास कर सकता है न्यूरॉन, लेकिन लाइट रिसेप्शन तो नहीं कर सकता है। तो अभी ये लाइट पहले टकराएगा किससे, रेटिनल गैंग्लियनिक सेल से, वो एक न्यूरॉन है तो वो लाइट का रिसेप्शन नहीं करेगा, लाइट उसको पार कर जाएगा, पार करके किसको टच करेगा, मुलर सेल, मुलर सेल इज ऑल्सो न्यूरॉन, डिस्कवर्ड बाय समवन नेम मुलर, इसलिए नाम ऐसा है, वो भी लाइट को नहीं उठाएगा तो लाइट उसको भी बाईपास कर जाएगा, करके किसको टच करेगा, बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन भी बोलेगा मैं न्यूरॉन हूँ, मैं उठा नहीं सकता हूँ तुमको, बाईपास, फिर लाइट जाके किसको टच करेगा, फोटो रिसेप्टर सेल को, नाम क्या है, रोडसेन कोन्स। जैसे ही लाइट जाके फोटो रिसेप्टर सेल को टच करेगा, रोडसेन कोन्स बीइंग अ फोटो रिसेप्टर सेल, वो लाइट का रिसेप्शन करेगा, उठा लेगा, लाइट को कैच करेगा, या लाइट के प्रति वो रिस्पॉन्ड करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ऑल दिस थिंग्स समझ में आया। और कोई लाइट अगर बाय चांस रोडसेन कोन्स को पार कर जाए, या कोई लाइट है जिसको रोडसेन कोन्स बुले नहीं उठा पाए, ठीक है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा रेज आ रहा है, रोडसेन कोन्स बुले सबको उठा नहीं पा रहा है,
तो अगर कोई लाइट रेस रोड्स एंड कोन्स को क्रॉस कर गया, इनका तो उठाने का औकात है ही नहीं, ये लोग न्यूरॉन है, रोड्स एंड कोन्स का उठाने का औकात है बिकॉज वो फोटो रिसेप्टर सेल है, लेकिन अगर वो बाई चांस उठा नहीं पाता है तो वो लाइट रेस क्या होगा, रोड्स एंड कोन्स को पार कर जाएगा और पार करके जाके वो किसको टकराएगा, नेक्स्ट कौन है, पिगमेंटेड एपिथेलियम, उसका नेक्स्ट कौन है, कोरोइड, दोनों का दोनों पिगमेंटेड लेयर। तो उसका काम क्या है कि अगर लाइट रेस कभी भी रोड्स एंड कोन्स को पार करके निकल जाता है तो ये जो कोरोइड एंड पिगमेंटेड एपिथेलियम पीछे खड़ा है, ये दोनों वेल पिगमेंटेड होके खड़ा है, क्यों खड़ा है, सो दैट वो लाइट को एब्जॉर्ब करके वही खत्म कर दे। नहीं तो अगर वो लाइट वहां से घूम के रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है और किसी और पॉइंट में जाके गिरता है तो एक ही लाइट का दो इमेज बनेगा एट टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द आईज। तो हम लोगों का विजन जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, ब्लरी टाइप का हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए जब ज्यादा लाइट होता है हम लोग को कोई भी चीज क्लियरली क्यों नहीं दिखता है, बिकॉज वो ज्यादा लाइट आँख के अंदर जाके वो रिफ्लेक्ट होके एक ही लाइट का सेवरल इमेज बन रहा है, इसलिए वो हम लोग को अच्छे से प्रॉपर्ली हम लोग देख नहीं पाते, उल्टा पेन होता है। समझ में आया। इसलिए आंख ने क्या मैकेनिज्म लिया है कि लाइट जब अंदर आएगा तो न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में आएगा, लेकिन न्यूरॉन उनको उठा नहीं पाएगा, तो क्रॉस पास फोटोरिसेप्टर सेल ने जिनको उठाया उनका रिसेप्शन हो गया है, उन लाइट रेस का विजन दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई लाइट रे रोड्स एंड कोन्स को पार करके निकल गया है तो पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड कोरोइड उनको एब्जॉर्ब करके खत्म कर देगा। दिस टू हैज द रोल ऑफ प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनसाइड द आईबॉल। ये आईबॉल के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रिवेंट करेगा, इसलिए ये दोनों हाईली पिगमेंटेड होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों हाईली पिगमेंटेड क्यों है, ये वास्कुलराइज्ड क्यों है, पहले बोला था, टू कीप ऑन कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग एक्वस ह्यूमर एंड ड्रेनिंग इट, ठीक है, एज वेल एज टू फॉर्म विट्रस ह्यूमर एट द फॉर्मेशन ऑफ द आई। तो ये सब काम के लिए कोरोइड हाईली वास्कुलराइज्ड था। अभी हाईली पिगमेंटेड क्यों है, क्योंकि रोड्स एंड कोन्स के पीछे पिगमेंटेड एपिथेलियम, उसके पीछे कोरोइड है। तो ये बैकअप है, डबल बैकअप, कि अगर रोड्स एंड कोन्स ने मिस किया तो पिगमेंटेड एपिथेलियम उठा के एब्जॉर्ब करके खत्म कर देगा। अगर पिगमेंटेड एपिथेलियम भी मिस कर दिया तो कोरोइड पीछे खड़ा है, वो खत्म कर देगा, स्क्लेरा तक जाने नहीं देगा, क्योंकि स्क्लेरा तक लाइट पहुंच गया तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होगा आँख के अंदर, तो एक ही लाइट का सेवरल इमेजेस बनेगा, ब्लरी दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। इट्स टायरिंग टू कीप ऑन स्पीकिंग कंटिन्यूअसली, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। नहीं, फोकस बनाए रखो तब समझ में आएगा सब, ठीक है। अब लाइट जब ऐसे करके आया, लेंस ने उस लाइट को फोकस किया, यहाँ पे लाइट पहले इससे मिला क्रॉस, इससे मिला क्रॉस, इससे मिला क्रॉस, इसमें जाके टकराया। जैसे ही लाइट जाके रोड्स एंड कोन्स में टकराएगा तब क्या होगा, एक केमिकल कुछ होगा, क्या होगा, देखो रोड्स जो है, ठीक है, रोड्स जो है इसको फोटोरिसेप्टर सेल, रोड से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। रोड इज अ फोटोरिसेप्टर सेल। अब रोड्स के अंदर ये जो काम है, क्यों रोड्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोटोरिसेप्टर सेल क्यों बोल रहे हैं, लाइट का रिसेप्शन करता है। कैसे करता है, रोड्स के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ रोडोप्सिन, एक प्रोटीन, ठीक है, जो उसको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू सी, ठीक है। ये जो रोडोप्सिन है ये दो चीज से बना हुआ है, एक ये बना हुआ है विजुअल प्रोटीन से जिसका नाम है ऑप्सिन, ठीक है, जो हमारा आंख का सेल रेटिनल सेल्स खुद सिंथेसाइज करता है। एंड एक है तुम्हारा रेटिनॉल जो है, ये रेटिनॉल बॉडी खुद भी बनाता है और बाहर से भी इसको देना पड़ता है, बिकॉज दिस रेटिनॉल इज अ एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। इसलिए विटामिन ए रिच फूड खाने के लिए बोलते हैं कि आंखों का बेटरमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, बीट, ये सब खाने के लिए बोलते हैं टू गेन मोर विटामिन ए इन ऑर्डर टू, टर्मरिक ऑल्सो हैज विटामिन ए। तो ये सब चीज़ों को खाने के लिए बोला जाता है इन ऑर्डर टू हैव अ गुड विजन, बिकॉज दिस रेटिनॉल इट इज एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ठीक है। बॉडी में विटामिन ए सप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बॉडी खुद भी बना लेता है, तो ये जरूरी है ये वाला पिगमेंट फॉर्म करने के लिए। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू फॉर्म द पिगमेंट फॉर कोन्स, ठीक है। रोड्स जो है, रोड्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, रोड्स इज नोन फॉर गिविंग अस व्हाट, स्कोटोपिक और डिम लाइट विजन। लाइट जब कम होता है, मून लाइट, कैंडल लाइट, वो सब में जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है रोड्स के वजह से। एंड ब्राइट लाइट, ये जो लाइट है, इस लाइट में जो तुम लोग को दिखाई दे रहा है या मेरे को जो दिखाई दे रहा है, डिफरेंट कलर्स, ये सब हेल्प करता है कोन्स, ठीक है। सो रोड्स एंड कोन्स, दीज आर द टू फोटो रिसेप्टर सेल्स, ओके। तो रोड्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रोड्स
जो डिम लाइट देखने में मदद करेगा उसके अंदर प्रेजेंट है एक प्रोटीन जो मदद करता है ये करने के लिए। नाम क्या है? फोटोपिगमेंट। इट इज अ फोटोपिगमेंट नेम्ड एज रोडोप्सिन। रोडोप्सिन is made up of two things, retinal and opsin. Okay, opsin is a visual protein, retinal is an aldehyde of vitamin A. Okay, so this is what you need to know about roads. Now let us consider, जब लाइट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे बोले रोड सी था, RNC नहीं, यहाँ पे मैं अभी सिर्फ R लिख देता हूँ, R रोड्स था। और ये लाइट जो है, ये लाइट ब्राइट लाइट नहीं, ये बोले डिम लाइट है। और डिम लाइट में मैं चीज़ों को देखने का कोशिश कर रहा हूँ और लाइट जाके गिरा है रोड्स पे। अब जैसे ही लाइट जाके रोड्स पे गिरेगा, ध्यान से, जैसे ही लाइट जाके रोड्स पे गिरेगा, क्यों रोड्स पे गिर रहा है? बिकॉज ये लोग न्यूरॉन है पास रोड्स पे, जैसे ही जाके लाइट गिरेगा रोड्स लाइट को उठा लेगा। और जैसे ही रोड्स लाइट को उठाएगा, रोड्स के अंदर जो रोडोप्सिन प्रेजेंट है वो रोडोप्सिन क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा इनटू रेटिनॉल एंड ऑप्सिन। इस चीज को समझो, वहां पे जो रोड्स था, बिफोर लाइट रीच्ड टिल रोड्स, बिफोर लाइट रीच्ड टिल रोड्स, ये जो रोड्स है, रोड्स के अंदर में एक फोटोपिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है रोडोप्सिन, और वो रोडोप्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही लाइट जाएगा पास रोड्स को, जैसे ही लाइट जाके टच करेगा, ये रोड उस लाइट को उठाएगा, और उस लाइट को उठाने के वजह से ये जो रोड है, इस रोड का ब्लीचिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो चीज है, ये दो चीज मतलब ये जो रोडोप्सिन है, ये रोडोप्सिन स्प्लिट हो जाएगा इनटू दिस टू। ठीक है, दिस रोडोप्सिन गिव्स अ कलर कॉल्ड विजुअल पर, आई होप इट इज विजुअल पर्पल, मैं लास्ट में चेक करके एक बार बोलूंगा। ठीक है, विजुअल पर्पल जब ये रोडोप्सिन के लेवल पे रहता है, ठीक है, जब रोडोप्सिन के लेवल पे रहता है बिफोर द लाइट रीचेस रोड्स, तो जो रोड है उसका कलर क्या रहता है? ये रोडोप्सिन का पर्पल जैसा रहता है। लेकिन जैसे ही लाइट पहुंचेगा, ये रोडोप्सिन स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ये टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग जैसा हो जाएगा कि नहीं? कलर अचानक गायब हो जाने के जैसा होगा नहीं? होगा कि नहीं? बिकॉज ये कलर तभी आता है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन लाइट गिरने के साथ साथ तो ये रोडोप्सिन टूट जाएगा तो ये जो कलर है, ये कलर भी गायब हो जाएगा, तो रोड्स का क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग हो जाएगा। जैसे ही रोड्स का ब्लीचिंग होगा, ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा आई होप, कि रोड्स बिफोर डूइंग लाइट रिसेप्शन, उसके अंदर में एक कंप्लीट पैकेज बन के रेडी रहता है जिसका नाम है रोडोप्सिन, जो रोड्स का कलर पर्पल टाइप का देता है। ठीक है, विजुअल वायलेट है या पर्पल है, मैं लास्ट में कंफर्म करूंगा। ठीक है, तो एक कलर देता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट रोड्स पे गिरेगा, जो कलर गिविंग सब्सटेंस है वो टूट जाएगा। ठीक है, कलर तो तभी आएगा ना जब ये रोडोप्सिन के फॉर्म में रहेगा। लाइट उठाने के साथ साथ ये रोडोप्सिन टूट गया, टूटने के साथ साथ ये रेटिनल ऑप्सिन अलग अलग हो गया, बाद में रिसाइकल होकर फिर से एक बन सकता है। लेकिन इस मोमेंट के लिए, इस टाइम के लिए जब लाइट उठाया तब तो ये अलग हो गया। अलग होने के साथ साथ ब्लीचिंग हो गया, ये कलर गायब हो गया रोड्स का। और जैसे ही रोड्स का ब्लीचिंग होता है, जैसे ही रोड्स का रोडोप्सिन टूटता है जिसके वजह से ब्लीचिंग होता है, वैसे ही ब्लीचिंग के साथ साथ जो रोड्स है, रोड्स मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंजेस। और जैसे ही मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज होगा, रोड्स जो है वो क्या हो जाएगा? डीपोलराइज हो जाएगा। खेल खत्म। रोड्स डीपोलराइज होने का मतलब क्या है? अब रोड्स रिपोलराइजेशन करके पोलराइज स्टेट में जाने का कोशिश करेगा, और उस कोशिश में बनेगा क्या? नार्व इंपल्स बनेगा। क्या? नार्व इंपल्स। ठीक है, तो कैसे देखो, रोड्स जो था वो ऐसे चुपचाप बैठा हुआ था, अचानक लाइट आया, पास रोड्स ने उठाने के साथ साथ उसका जो विजुअल पिगमेंट है वो टूट गया, टूटने के साथ साथ उसका ब्लीचिंग हो गया, कलर चला गया, और उसके वजह से उसका मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, नार्व इंपल्स बन गया। तो रोड्स ने लाइट उठाने के वजह से रोड्स में एक बिजली बना, एक नार्व इंपल्स क्रिएट हुआ। दैट नार्व इंपल्स रोड्स विल पास इट टू होम। आगे दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। पिगमेंटेड एपिथेलियम में वो तो न्यूरॉन नहीं है, वो तो कंडक्शन ऑफ नार्व इंपल्स नहीं करेगा। वो क्या करेगा? ऑलरेडी बता दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये जो रोड्स है वो नार्व इंपल्स जो उसमें बना है ड्यू टू लाइट रिसेप्शन, उसको आगे देगा? नहीं देगा। पिगमेंटेड एपिथेलियम को देगा? नहीं देगा। उसको पिगमेंटेड एपिथेलियम का औकात ही नहीं है लेने का, तो वो किसको देगा? जिसका औकात है। किसका औकात है? बाइपोलर न्यूरॉन का औकात है, तो नार्व इंपल्स बाइपोलर न्यूरॉन को, बाइपोलर न्यूरॉन नार्व इंपल्स मुलर सेल को, मुलर सेल नार्व इंपल्स रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल को। क्यों? क्योंकि ये तीनों न्यूरॉन है। और रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल का जो मैं नार्व एंडिंग एक्सॉन बोल रहा था, उसके थ्रू ये नार्व इंपल्स जो रोड्स में बना, वो नार्व इंपल्स ऐसे करके आया, और फिर इसके थ्रू वो नार्व इंपल्स क्या होगा? देखो, ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू निकल के कहाँ चला जाएगा? ब्रेन में। और जो भी लाइट आके गिरा था
उस लाइट का जो नर्व इम्पल्स बना वो ऐसे करके जाएगा ब्रेन में, ब्रेन उस नर्व इम्पल्स को डिकोड करेगा और हम लोगों को इमेज समझ में आएगा, लाइट से क्या इमेज बना है इन द रेटिना, ठीक है, वो इमेज हम लोग को समझ में आएगा बेस्ड ऑन दिस नर्व इम्पल्स व्हिच विल गो इनटू द ब्रेन। ब्रेन समझ लेगा ये नर्व इम्पल्स किस लाइट से बन के आया है, उसके वजह से क्या इमेज आंख में बन रहा है, वो इमेज किसका है, क्या कलर है, क्या ये इमेज मैंने पहले कभी देखा है, ये सब ब्रेन एनालाइज करके तुमको एक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा जिससे तुमको समझ में आएगा कि तुमको क्या दिखा है, वो चीज़ क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कोई पहले देखा हुआ स्ट्रक्चर है क्या, कलर क्या है, कितना दूरी में है, कितना, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द आई डिस्कस्ड विथ वन सिंगल डायग्राम, ओके। आई होप यू कनेक्टेड टू इट। इफ यू फाइंड कंफ्यूजन इन एनी पोर्शन प्लीज रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड द आई and you will take a good care of your eye by eating those things which I have said, ठीक है, that enhances the this retinol thing in our body, okay। eat beet तो पता है सलाद में खा ही सकते हैं, carrot please eat 250 grams of carrot per week and you can also consume red meat, green leafy vegetable, eggs, these things will also provide you a good amount of vitamin A, कच्चा हल्दी, टर्मरिक, ओके। सो यह खत्म होता है दोनों तरफ का ज्ञान, पढ़ाई का भी एज वेल एज लाइफ का भी, ठीक है, नहीं तो बैटरी बन जाओगे, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन।